everyone. This is Dr. Sabha Taranam, BMS MTI gold medalist, founder of Swasth Raksha Ayurveda Clinic, Panchakarma and Wellness Center, Gulbarga. Today we are going to learn about Trikatu Churna, Haritakyadi Varga. And as Ayurveda Formulary of India, that is AFI, had taken the reference from Bhaishya Ratnavali, Paribhasha Prakarana 16th. We all know Trikatu. Trikatu, Triphala are very common drugs and very common churna has been used in Ayurveda by many of the practitioners. What we think is Trikatu is mainly for Deepana Pachana. But did you know what are the indications of Trikatu where it all can be given? It's not just limited to Deepana Pachana. You can see Trikatu Churna has been explained by various authors like Charaka Samhita in Shula Prashamana, Mahakashaya, Charaka Sutra Adhyaya 4:17. Then Shushuta Samhita, Trikatu Gana, Shushuta Sutra Adhyaya 38, chapter 58 to 59 shloka. Ashtanga Sangraha, Pipalyadi Gana in Ashtanga Sangraha, Sutra Adhyaya 16. Dhanvantari Nigantu in Mishrakadi Varga, Kaideva Nigantu, Aushadhi Varga, Madanapal Nigantu, Shuntyadi Varga, Raja Nigantu, Mishrakadi Varga, and Bhava Prakasha Nigantu. It has various other benefits, so let us know what are the benefits. Ayurveda Formulary of India, that is AFI, has accepted Trikatu Churna from the reference Bhaishya Ratnavali, Paribhasha Prakarana, 16th chapter. And in AFI Part 1, 7:14th, Trikatu Churna has been mentioned. Pippali Maricham Shunthi, Trayametat Vimishritam, Trikatu Trayushnam Vyosham, Katu Trikam Uchyate. Bhaishya Ratnavali, Paribhasha Prakarana, 16th chapter. As explained, Pippali, Maricha and Shunti, you all know Trikatu, all are taken in one part each. And the dosage will be 1 to 3 grams. Anupana will be honey, warm water. Important therapeutic indications will be Arochaka, tastelessness, that is anorexia, Agnimandya, digestive impairment, Amadosha, that is products of impaired digestion and metabolism or consequences of Ama, Galaroga, diseases of throat, Penasa, chronic rhinitis or sinusitis, Kushta, skin diseases, Shwasa, dyspnea and or asthma, Kasa, that is cough, Twakroga, that is skin diseases, Gulma, abdominal lump, Meha, excessive flow of urine, or you can consider Meha also, that is diabetes, Sthaulya, obesity, Shlipada, that is phleresis. As far as now, we have always considered Trikatu Churna just for Deepana Pachana. Either it may be before Vamana procedure or Virechana procedure. We have mostly considered Trikatu Churna for Deepana Pachana so that it will digest Amadosha and Agnimandya. But we have not known that it is also used in Galaroga, Penasa, that is rhinitis, skin disorder also. Shwasa, Kasa, Twakrogas, Gulma, Meha, Sthaulya, Shlipada. These all are the indications. Except Deepanapachana, Trikatu is given in various disorders. Apart from this, in Sharangadhara Samhita, Churna Kalpana, that is Madhyama Khanda, 6th chapter, he has mentioned Trayushna for Deepanapachana ke liye. The reference is taken from Vaishya Ratnavali, Paribhasha Prakarana, but the indications which have been mentioned in AFI have been taken from Churna Kalpana of Sharangadhara Samhita from Madhyama Khanda. The shloka goes as such: Pippali Maricham Shunti, Tribhis Trayushnam Uchyate, Deepanam Sleshma Medhognam, Kushta Penasa Nashanam, Jayed Arochakam, Saamam,
मेह गुल्म गला आमयान, which means that पिपली, मरीच दैट इज काली मिर्ची और सोंठ को त्रयुष्ण कहते हैं। इसके सेवन से अग्निदीप्त मतलब कार्मिनेटिव इफेक्ट होता है तथा कफ, मेद दैट इज फैट, कुष्ठ लेप्रोसी, पीनस दैट इज रनाइटिस, आरुचि अनोरेक्सिया, आमदोष इंडाइजेशन, मेह पॉलीयूरिया, गुल्मा ट्यूमर और गले के रोग दैट इज थ्रोट डिसीजेस नष्ट होते हैं। इसे त्रिकटु भी कहते हैं। जो जनरल पब्लिक है उनके लिए पिपली आप सब घर में बना सकते हैं। जैसे पिपली मतलब पिपली, मैं आपको इमेज बताती हूँ वो कैसी रहती है, देखिए। और मरीचा मतलब काली मिर्ची, शुंठी इज नथिंग बट अदरक, मतलब अदरक को सुखाकर जब पाउडर बनाते हैं उसे शुंठी कहा जाता है। तो ये घर में मिलते हैं। दो किस्म की काली मिर्ची है, एक लंबी वाली एक गोल वाली, और एक शुंठी है जो ड्राई अदरक को कहते हैं। वो सबको इक्वल रेशियो में मिला के अगर आप अपने पास रख लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको डॉक्टर से कंप्लेन से लेके आपके पित्ते की थैली में सूजन आई हुई है, या आप आपको मोटापा ज़्यादा हुआ हुआ है, या आपको दमे की बीमारी है, या खून की बीमारी है मतलब खून कमी की बीमारी है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसे बोलते हैं हम, या फिर जॉइंट में तकलीफ है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो सब में पिपली बहुत ही ज़्यादा असरमंद है। मतलब अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं, मेरे को खाने में टेस्ट नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मैं क्या खा रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तीखा भी नहीं लग रहा, ना खट्टा लग रहा, ना कुछ लग रहा, टेस्ट बदमज़ा हो गया खाना, समझ ही नहीं आ रहा बोल के। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो घर पे बना रहे तो जैसे सेम मैंने कहा था ना, वो रेशियो में मिक्स करके 1 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं, एक एक चमचा खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ। मोटापा है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। क्या है, मोटापा कमिश नहीं हो रहा, कभी कभार स्टबन फैट बोलते हैं ना, एकदम चर्बी चढ़ गई रहती है उतरतीश नहीं, तो उसमें भी आप ऐसे ही ले सकते हैं हनी के साथ, जो कफा को पिघलाने में काम करता, जो आपका फैट बर्निंग में काम करता, ताकि डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता और ओबेसिटी कम हो जाती, मतलब मोटापा कम हो जाता। जब डाइजेशन अच्छा हो और एक्सक्रीशन अच्छा हो तो आपका मोटापा कम हो जाता। खांसी है, बलगम है, जुकाम है, बार बार सर्दी में छींका आते, नहीं तो भी जस्ट डस्ट एलर्जी या कंटिन्यूसली छींका आते रहते हैं आपको, तो ये वो वहाँ भी फायदेमंद है चूर्ण। तो आप वहाँ पे भी घर पे बना के रख सकते हैं, सिंपल मेडिकेशन है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये लेने से ही, मॉडर्न एलोपैथी लेने से ही मेरे को कम होगा, मेरे को कुछ असरमंद नहीं है होते, मेरे को मेडिसिन नहीं जमता, मेरे को क्या भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स आए हैं जो रेसिस्टेंट हो गया है उन्हें मेडिसिन, जो सिटीजन रेसिस्टेंट हो गया है, और मोन्टेलुकास्ट रेसिस्टेंस भी देखने को मिलती है हमारे को। पर वैसे वो लोगों को ये त्रिकटु चूर्ण और बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होती है। और कई सारी माओं की कंप्लेंट्स ये है कि बच्चा खाता ज नहीं डॉक्टर साहब, खाली खेलते रहता, उसको भूख लगती ज नहीं, उसको हम फोर्सफुली खिलाना पड़ता फिर भी नहीं खाता, उसकी ग़िज़ा कम हो गई हुई है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स मम्मी लोग के रहते, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है। वहाँ पे उनका जो भूख लगने की इंटेंसिटी रहती है उनको इंक्रीज करता, ऐसे वाले लोगों को। तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट करता, उसको टेस्ट मालूम पड़ता, उसको फूड अच्छा टेस्टी दिखता, तो ज़्यादा खाना अच्छा खाता। अगर आप गुलबर्गा के रहने वाले हैं तो प्लीज़ विजिट करें, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें जो नंबर दिया है स्क्रीन पे। अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेदा का नॉलेज रखना चाहते हैं, जिसको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में और आगे जाके आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, तो फर्दर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो कि आपको पीजी में भी यूज़फुल होंगे, और जो प्रैक्टिशनर्स के लिए फॉर्मुलेशंस मैं डालते रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स में मैं आपको शेयर करूँगी। धन्यवाद।